नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है हर्षिता, जो की प्लेस हो चुकी है कैपजेमिनी में। दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा अलग होने वाला है क्योंकि इनकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रही है। दोस्तों, 2015 में ग्रेजुएट हो चुकी थी, उसके बाद दोस्तों टीचिंग फील्ड में थी, बट इनका अचानक इंटरेस्ट आ गया आईटी फील्ड में। जैसा कि मैं आप सभी को बता देता हूँ, लॉकडाउन में काफी लोगों का इंटरेस्ट है जो आईटी फील्ड में जागरूक हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही हर्षिता का हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, साथ ही साथ इंटरव्यू क्वेश्चन, और ये भी बताने वाली कि कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया। और आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, इन्होंने हमारे साथ कैपजेमिनी का लाइव मॉक इंटरव्यू भी दिया था। और अगर आपको लाइव मॉक इंटरव्यू देना हो तो प्लीज अपना स्लॉट बुक जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। Okay. Hi everyone, those who are watching YouTube video. First of all, I would like to thank Anshul, who gave me an opportunity to introduce myself and share my experience on this platform, Tech and Target. So, I would like to introduce myself. I started my journey in 2015, where I was working in a school which was of very ground level, I think. So, from there, I started my journey because I graduated in 2015, but my parents did not send me out. Just for the reason, no, you stay here only, whatever you want to do, continue your education here only. So I started looking for an opportunity. So I got a job in Bilaspur school. Then I worked in DPS Durg, DPS Raipur. So there are these schools I worked upon. Then I had a thought, no, I would have to upgrade myself. So I started doing MTech. So I started my MTech in 2016, and just because I was married also, so it took time for me to complete, and I just finished it just before lockdown. So 23rd March, from there, I think the lockdown started. So I just got my result on 20 March 2020. So that was an opportunity for me that yes, that I completed my MTech here. Then after that, just my husband was transferred to Indore. So I stayed here only because I was teaching in a school, and just till class 12th I was teaching. So I could not leave the school also and could not move with my husband. So at that time my husband moved away. So I was staying with my parents. So my MTech was completed. Then I was about to deliver a baby also. So during this March to May 2021, I delivered a baby. So after that, it was a C-section. So I just preferred that after 6 months, I would start my journey again. So in this lockdown, what I felt that I was working in schools, okay, but I did not get any maternity leave. So that was a disadvantage, which I found that because those who are working in companies, they are having 6 months maternity leave. So from then on, and just lockdown, and everybody was sitting at home working. So it was a nice approach. So from then, I just changed my mindset and I started looking for IT companies. My husband also supported me. Yes, you should try for an IT companies because you are MTech now. So you must look for IT companies. So I started looking for IT companies, and then I found that Capgemini off-campus hiring, where MTech also students, 2019-20 students can just apply. So I applied, and I applied on 7th January 2022. So last date was 9th January 2022. So I was in a hurry and just applied. Now the question is, now I got a mail that you are going to have a test, online test and proctor test. So 17th January was the schedule given to me. Now the question is, now how would you prepare? The first question is, how would you prepare? What will be the syllabus? So because I was not from a tech background, basically education background and tech background is completely different. So I looked into the platform, searching into the YouTube videos. So the first video I think I found of Anshul's, that is Tech and Target. So there I found that all the companies are having different playlists. So all the videos, first video which I saw about of him is कि आप जब भी हैं तो YouTube videos जब आप देख रहे हैं तो why you people are taking subscription, because everything is available on YouTube videos. So मैंने ये YouTube video देखा इनका, तो एसेंचर का भी मैंने अप्लाई किया था बट मेरा वहां हुआ नहीं. तो कैपजेमिनी की इनकी पूरी प्लेलिस्ट देखी, रात रात भर जग के पूरा प्लेलिस्ट से मैंने प्रिपेयर किया. इनके मॉक इंटरव्यूज मैंने अटेंड किए.
तो मेरे को प्लेलिस्ट से बहुत हेल्प मिली। ईच एंड एवरी डे मैं सूडो कोड्स पढ़ती थी, इनके जो भी पुराने क्वेश्चंस हैं उनको देखा मैंने, तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिला। तो इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर, एवरीथिंग आई लुक्ड इनटू दिस एंड वॉच दिस वीडियोस। देन गेम वीडियोस, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड वीडियोस, सारे से मैंने वन बाय वन ईच डे टेकिंग टाइम आउट ऑफ माई जर्नी, बिकॉज मेरी 7 मंथ की बेबी भी है, तो उससे अलग हटके मैं टाइम भी निकालती थी, प्रिपेयर करती थी इनके वीडियोस से। तो इनके वीडियोस में मुझे इतना तो मीन्स कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस, कहीं ना कहीं मेरा प्रिपरेशन 90% हो चुका है। इनके वीडियोस से मेरे को इतना एक गाइडेंस मिल गया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं मुझे। और वैसे ही हम एमटेक बैकग्राउंड से हैं, तो हमको ज्यादा कोडिंग वगैरह में और ऑलरेडी यूज टू भी थी, तो मुझे इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा प्रिपेयर करने से। बट पूरे वीडियो सूडो कोड के ईच डे ये देख लेती थी कि आज ये वीडियो हो गया है, कल वो वीडियो हो गया है, डेली मैंने उससे प्रिपेयर किया। गेम वाले वीडियोस, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के जो वीडियोस हैं वो देखे, उससे प्रिपेयर किया, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। बाकी बिहेवियरल जो टेस्ट होता है हमारा लास्ट वाला, इट्स अप टू अस कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से नाउ यू कैन गिव पॉइंट्स, बिकॉज आपको वहां पॉइंट्स देने पड़ते हैं 100 क्वेश्चंस जो रहते हैं। तो मैंने, और मेरा जो मॉक वीडियो, हाँ 17 को मेरा टेस्ट हुआ था, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 2:30, जो कि मेरा 4:34 अप्रोक्सीमेटली 4:45 तक चला था वो टेस्ट। तो 2.5 से 2.25 घंटा मुझे लगा था। प्रॉक्टर टेस्ट था। सबसे पहले हमारा जो डीएसए के क्वेश्चंस आते हैं वो किए मैंने। तो देन सूडो कोड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सूडो कोड, बिकॉज आपको वहां पे स्पीड मैच करना होता है। इफ आप स्पीड मैच नहीं करोगे, बिकॉज आपको 15 to 20 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही रहते हैं, वो भी करेक्टली ना। आप इधर हिल सकते हैं ना उधर हिल सकते, पेन पेपर लेके जो भी हम बैठे। तो देन ईच राउंड के बाद ये लगा हाँ यार ये तो क्लियर हो गया, मैं नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुकी हूँ। देन इंग्लिश का आया, पैराग्राफ भी बहुत टफ था, और एक्चुअली पैराग्राफ भी टफ था, बहुत लेंदी पैराग्राफ था जो भी आया था कैपजेमिनी में। 2 पैराग्राफ्स आए थे, दैट टू, एंड उसके साथ जो सिनोनिम्स के क्वेश्चन, फ्रेम द सेंटेंसेस मींस अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर, देन वो क्लियर कर लिया। फिर गेम बेस्ड टेस्ट में पहुंच गए, तो उसमें भी काफी राउंड्स थे, तो मैं 5 लेवल तक पहुंच गई थी। देन बिहेवियरल टेस्ट था, तो जैसे ही मैंने टेस्ट दिया, देन आई गॉट माई वर्क स्टाइल रिपोर्ट विद इन 1 hour। ग्रेट। सो वर्क स्टाइल रिपोर्ट आने के बाद कब आपके पास इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड मेल आया, या फिर डायरेक्टली आपके पास इंटरव्यू डेट आई? नहीं, तो मुझे जैसे ही मतलब वैसे मैं पढ़ भी रही थी कि वर्क स्टाइल रिपोर्ट क्या होती है, कब आता है, आपके वीडियोस में देखा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमको वर्क स्टाइल के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा कि नहीं। तो वर्क स्टाइल रिपोर्ट मुझे इमीडिएटली ही आ गया था, मतलब मैंने मेरे हस्बैंड को ही बस मैसेज किया था कि हमको वर्क स्टाइल रिपोर्ट आती है, अब ये इंटरव्यू देने के बाद, ये हमने जो भी ऑनलाइन टेस्ट किया इसके बाद हमको रिपोर्ट आ जाएगी। मेरे को आधे 1 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट आ गई थी। तो फिर मैंने आपके वीडियोस में देखा कि क्या प्रोबेबिलिटी है भाई कि वर्क स्टाइल रिपोर्ट आ गया है, अब मेरे को इंटरव्यू का शॉर्टलिस्ट के लिए मेल आएगा कि। तो 17 जनवरी 2022 को मेरा कंप्लीट हुआ था टेस्ट, जो कि 4:30 पौने 5 को कंप्लीट हो गया था। मुझे 6 बजे तक आ गई थी वर्क स्टाइल रिपोर्ट, और इमिडिएटली 1 घंटे बाद और आ गई थी, मीन्स 2 रिपोर्ट्स आ गए थे मेरे पास, सेम रिपोर्ट्स थे बट आ गया था। देन आफ्टर दैट जस्ट क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट मेल आने वाला है कि। तो 20 जनवरी 2022 को मेरे को मेल आ गया था कि कल आपका जस्ट मैं एक चीज बताइए, कुछ आपको याद है कि एक्सपेक्टेड आपने सूडो कोड में कितने आपके क्वेश्चन सही थे वर्बल में? क्योंकि आप बोल रहे हो आपने हमारी वीडियो देखी थी प्रोबेबिलिटी वाली, तो हमने उसमें बता रखा था कि अगर आप इतने मार्क्स लाओगे तो आपके पास इंटरव्यू मेल आएगा। तो आप बता सकते हो कि लाइक अराउंड कितना आपने ठीक किया? मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स में अगर मैं बात करूंगी तो 7 to 8 क्वेश्चंस पूरे किए थे मैंने, एंड सूडो कोड में अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मतलब ऑलमोस्ट 15 अराउंड क्वेश्चंस यू सॉल्व्ड इट? यस, 15। ओके, दैट्स ग्रेट हर्षिता। एंड ऑन वर्बल, इन वर्बल में तो मैंने सभी अटेम्प्ट किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो छोड़ा था, बिकॉज ऑलवेज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं पूरे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, दैट्स ग्रेट हर्षिता। सो हर्षिता, आप बताए थे 20 जनवरी को आपके पास कौन सा मेल आया था? जी, शॉर्ट लिस्ट के लिए मेल आ गया था कि सुपर सेट से कि कल आपका इंटरव्यू है, इस टाइम पे है, 2 से 3 बजे तक। ओके, फिर नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू हुआ, तो अब आप मेन स्टार्ट इंटरव्यू किया? यस, तो नेक्स्ट डे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। तो फर्स्ट आपको सुपर सेट में लॉग इन करना रहता है, आपको सारे स्टेप्स बता दिए जाते हैं।
तो लाइक मेरा टाइमिंग था 2 o'clock, बट माई इंटरव्यूअर ज्वाइंड एट 10 minutes बिफोर, 10 to 15 minutes बिफोर उन्होंने ज्वाइन किया. सो सारे क्वेश्चंस जो है मैं स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट द बेसिक क्वेश्चन, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ. सो आई स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ कि ये मेरा बैकग्राउंड है, मैं 2015 पास आउट हूँ. सो ही जस्ट आस्क्ड मी, आप रुक गए वो वहां पे, तो आप 2015 पास आउट हो, देन हाउ, मैं फिर ये आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है? मैंने कहा नहीं, ये मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एमटेक 2020 है. ओके, देन ही आस्क्ड मी फर्दर क्वेश्चंस. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल? सो मैं जावा बोला कि मैं जावा में कंफर्टेबल. देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस. What is the difference between, first question which he asked is, what is the difference between C and C++? Then what is the difference between Java and C++? Then third question उन्होंने पूछा कि Java क्या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है कि इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है? तो Java का, how will you execute the code on Java? What will be the file extensions? How will you save it? Then polymorphism के बारे में पूछा उन्होंने, स्टैटिक एंड देन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. देन उनने मुझसे पूछा ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पूछा. कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, पैकेज क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस मेरे से किए गए थे. देन ही गेव मी 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आल्सो. प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस वेर बिट इजी फॉर मी, कि आप हाउ विल यू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, दैट वाज द क्वेश्चन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ही गेव मी अ कंडीशन, some conditions he gave me, then how will you execute it, he asked me. So अर्षिता, ये जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस उन्होंने आपसे कोड करवाया था, सिर्फ आपसे उनका लॉजिक पूछा गया था? नहीं, मेरे को उन्होंने कोड करने बोला था और मैंने आउटपुट भी दिखाया उनको. तो यस, सो मेरा पूरा इंटरव्यू कम से कम 20-25 मिनट्स के लिए चला जी. तो लास्टली ही टोल्ड मी दैट आई एम इम्प्रेस्ड. ही जस्ट गेव मी अ फीडबैक आल्सो दैट yes, I am impressed. So these type of questions he asked me. Okay, and once your interview was finished, what was the next process that was like notified by Capgemini? Once my interview was finished, then I got a simple message like, you have to stay on this Superset platform, don't log out. Then around 5 o'clock, I got the message, now you can log out of the platform. So I was just browsing into this YouTube videos that why they told me to log out, because मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे थे जिसमें ये लिखा था, now you can move, just deactivate your Superset account because now you are not eligible. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत माइंड में आ रहे थे कि ये मेरे को मैसेज क्यों आया कि आप लॉग आउट कर लीजिए Superset प्लेटफॉर्म से. देन 2-3 days वेट किया मैंने. देन Superset में एक मेल डाला कि मेरे को इंटरव्यू का रिजल्ट देखना है, तो व्हाट एंड व्हेन विल आई गेट माय रिजल्ट. तो वहां से कंटिन्यूअस मेल आया कि विप्रो के लिए ये प्रोसेस है, आपका कैपजेमिनी के लिए ये प्रोसेस है, कॉग्निजेंट के लिए ये है, आपको ऑफ कैंपस ड्राइव से अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो तो नाउ योर स्टेटस विल बी चेंज टू ऑफर्ड. तो कल परसों मैंने फिर एक मेल डाला था जो कि फ्रेशर्स हायरिंग एट capgemini.in करके एक मेल है, वहां मैंने मेल किया कि आई वांट टू नो द रिजल्ट, बिकॉज सी द सिचुएशन इज अभी इतने वैकेंसीज हैं, तो आई कैन ट्राई एनी अदर कंपनीज, व्हाई विल आई वेट. ओके, एंड व्हाट इज द रिजल्ट, आई वांट टू नो, बिकॉज एक क्यूरियोसिटी भी रहती है कि आपके रिजल्ट का क्या हुआ. आपने एग्जाम दिया था, आपका अच्छा भी गया, आपको एक क्वेश्चन ये भी था कि इंटरव्यू ने मुझे इम्प्रेस्ड बोला था, तो किस बेस पे बोला, क्या मैंने कुछ गलती कर दी थी कहीं की, क्योंकि मेरा एमटेक था तो मेरा एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली इंटरव्यूअर का मेरे से ज्यादा बढ़ जाता. तो उनने मेरे से प्रोजेक्ट के भी क्वेश्चंस किए थे. यस, तो मेरा प्रोजेक्ट था सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग. तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल, सास पास क्या होता है, आईएएस क्या होता है, सब वो क्वेश्चंस उनने मेरे से किए थे. तो इम्प्रेस्ड बोला था मुझे, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीज था जी. ओके, एंड कोई एचआर क्वेश्चंस ही पूछे गए आपसे? नहीं, एचआर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उस दिन इंटरव्यू में नहीं मेरे से पूछा गया, बस आर यू विलिंग टू रिलोकेट यही पूछा गया था. तो आई टोल्ड यस, आई एम विलिंग टू रिलोकेट डेफिनेटली, बट लोकेशन, जॉब लोकेशन अगर, तो मैं मुंबई प्रेफरेंस में मैंने कहा था, बट अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी की तरफ से होगा. ओके, तो यही इंटरव्यू क्वेश्चंस में, एचआरस में ज्यादा नहीं था. हर्षिता, आपने जैसे 2 बार सुपर सेट पे मेल किया, फिर रिजल्ट कब आया ये तो बताइए.
हाँ, सुपर सेट में जो 2 बार मैंने मेल किया था, इमीडिएटली मुझे 5-10 मिनट्स में आता है रिप्लाई वहां से, बट रिप्लाई ऐसा रहेगा कि वो आई थिंक ऑटोमेटेड रिप्लाई ही है उनका, कि अगर आप इंटरव्यू रिजल्ट्स के बारे में पूछेंगे तो वो आपको 3 आपको लिस्ट दे देंगे कि विप्रो के लिए ऑफ कैंपस का ये प्रोसेस है, कॉग्निजेंट के लिए ये है, कैपजेमिनी का ये प्रोसेस है। बट हमारा आपको, हाँ, उनने मेरे को एक बार ये भी मेल किया कि आपको प्लेसमेंट टीम से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो मैंने फिर वहां रिप्लाई डाला कि मैं तो एमटेक 2020 पास आउट हो चुकी हूँ, मेरा टीसी वगैरह सब वहां से मैंने ले चुकी हूँ, तो मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, अपने प्लेसमेंट टीम के कॉलेज से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अगेन मेरे को सेम मेल यही आया, कॉग्निजेंट के लिए ये प्रोसेस है, आपका ये मेल है, देन ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए आप वेट करिए। देन कल परसों फिर मैंने मेल किया था कि भैया आई वॉन्ट टू नो द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट। देन टुमारो, yesterday evening by 7 or 8 I just mailed to Tech and Target team कि भाई ये है, मैं आपसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो टेक एंड टारगेट का मेल आया कि मैं अभी लेटर ऑफ इंटेंट मेरे को मिल गया, ऑफर लेटर मिल गया, तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो बस उसी टाइम मेरे को कैपजेमिनी का मेल दिखा सुपर सेट से, तो बस हमारी जर्नी यही है। That's great, like lovely, like आपने जैसे ही मेल किया आपके पास ऑलरेडी उनकी साइड से भी मेल आ गया। Yes, उनके साइड से भी तुरंत मेल आ गया था, तो मैंने आपको दोबारा मेल किया कि मुझे ऑफर लेटर भी आ गया। या आई सॉ दैट मेल। यस, या तो मैं बहुत खुश थी। लाइक खुश क्या यार, मैं भी बहुत खुश हूँ। लाइक आपका जो जर्नी रहा है, आपने रात में प्रिपरेशन वीडियोस देखे, लाइक रिस्पेक्टिव यू हैव अ बेबी एंड यू हैव आल्सो स्टडीड अ लॉट। सो लाइक हर्षिता, जैसे कि आपने हमारे चैनल से मतलब रिटन टेस्ट की तो तैयारी की थी, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी आपने? इंटरव्यू की प्रिपरेशंस देखिए, बेसिकली आपके प्लेटफॉर्म से किया, आपके पूरे क्वेश्चंस स्टडी किए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योर प्रोजेक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ योर इन योर प्रोजेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर किए थे। यस, और बाकी अपना अप्रोच लगाया कि व्हाट विल आई से, बिकॉज आई एम एमटेक पास आउट, सो मेरे को अपना प्रोजेक्ट को कैसे सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना है, तो ये सब मैंने आपके अप्रोच लिया, प्लस अपने तरफ से गाइडेंस को दिया। Okay, that's great, Harshita. Congratulations, like once again. Thank you so much. So happy. So हर्षिता, देखो यार, आपने तो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। आपके जैसे भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी कैपजेमिनी में स्ट्रगल कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर कंफ्यूज है कि यार कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो अगर आप छोटे से जिस्ट में बता सको कि यार लाइक यहाँ कि आप ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, तो प्लीज यार उनको आप एक छोटा सा मैसेज कन्वे जरूर कीजिए। Yes. तो सबसे पहले ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर कैपजेमिनी, आपको ये करना चाहिए कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, राउंड्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि सारे कंपनीज की हायरिंग प्रोसेस डिफरेंट रहते हैं। ओके, तो सूडो कोड तो कॉमन हो गया। ओके, हियर ईच एंड एवरी राउंड इज एन एलिमिनेशन राउंड। तो सूडो कोड के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इफ, एल्स, एंड और नॉट, ये सब क्या होता है, आपके ये पूरे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बिकॉज हाउ टू एग्जीक्यूट अ लूप, विच पार्ट इज गोइंग टू टर्मिनेट योर लूप, लूप्स कैसे होते हैं, कैसे रनिंग होती है उनकी। बेसिकली कैपजेमिनी में जो पूछा गया था वो इफ एल्स पे वर्किंग था, इफ एल्स फॉर लूप। ओके, तो आपको फॉर लूप, इफ एल्स, ये सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। मस्ट यूज एंड रन द आउटपुट क्वेश्चंस। डेली आप लोग आउटपुट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए कि आप कैसे मिनिमम टाइम में आउटपुट निकाल सकते हैं, ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। हम बात करेंगे अगर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की, तो बहुत सारे साइट्स भी हैं, और कि अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो W3 स्कूल्स हो गया, जावा ट्यूटोरियल पॉइंट हो गया, इन सबसे आप अपने डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करिए। बाइनरी ट्री, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, इसका सबसे अच्छा मैंने टेक एंड टारगेट में ही सीखा, बिकॉज मैं सब भूल भी गई थी। ओके, क्योंकि हमारा कब से पास आउट है, हम डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह मैं भूल गई थी सब। तो सबसे इजी वे में मैंने टेक एंड टारगेट से ही प्रिपेयर किया था डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो आपको इनफिक्स, पोस्टफिक्स, ये सब का तो थॉरोली प्रिपरेशन करना है। बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस थे सूडोकोड और फर्स्ट राउंड के, वो बेसिकली ग्राफ्स वगैरह से भी आए थे। तो इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या आपकी ये होगा, इसमें आप पर्टिकुलरली अप्लाई करिए। देन पोस्ट फिक्स के आउटपुट क्वेश्चंस भी आए थे मेरे लिए, तो मैंने ये सबको प्रिपेयर कर लिया था आपके वीडियोस से, तो मेरे को बहुत हेल्प मिली थी। तो मैंने जल्दी फटाफट आउटपुट में, ये था कि इनके प्रिपरेशन से सूडो कोड किए, तो उससे मेरा आउटपुट बहुत जल्दी आ रहा था। व्हेन आई कैलकुलेटेड इट, आई जस्ट सॉ दैट मैक्सिमम 4 ऑप्शंस में ये ऑप्शन तो था ही,
तो मुझे बहुत हेल्प मिली थी। तो सूडो कोड एंड डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ट्री वगैरह, लीनियर सर्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आप लोग डीप में सर्च करिए कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, पढ़िए उसके बारे में अच्छे से। देन अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, मींस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वर्बल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जानी चाहिए आपको, क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग एंड ऑल इट इज ऑल वेरी इजी। हाँ, पैराग्राफ की प्रैक्टिस करिए आप लोग, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे हम कर सकते हैं। तो बेसिकली पैराग्राफ्स, तो 2 पैराग्राफ्स तो मेरे को आए थे, मींस एंड दे वर लेंथी आल्सो, और मींस आपको जब आप 3 to 4 टाइम्स उसको रीड करोगे तभी आप समझ पाओगे, ऐसा था। आप एक बार में ये नहीं समझ सकते। जैसे मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग कि हम टाइटल नीचे के क्वेश्चंस पढ़ लिए, देन दे आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट इन द पैराग्राफ। डोंट डू लाइक दिस, स्टडी द पैराग्राफ फर्स्ट, देन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। यस, पैराग्राफ पढ़िए। एंड गेम बेस्ड के लिए गेम बेस्ड राउंड और है क्या? गेम बेस्ड राउंड तो फर्स्ट सेकंड लेवल तो इजी रहता है, बट आप जैसे जैसे आगे मूव करते जाते हो आपका लेवल उतना ही टफ होते जाता है। तो मैं 6th-7th लेवल में तो मैं भी अपना दिमाग नहीं लगा पा रही थी, मींस आई वाज जस्ट स्टक ओवर देयर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आई जस्ट लेफ्ट। देन जो आपके ग्रिड वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको प्रैक्टिस किया, थोड़े से एग्जांपल्स आपको एज सून एज यू रन द टेस्ट आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स उन लोग वहीं देते जाते हैं कि यहाँ से ये मूव करना है, यहाँ से ये मूव करना है, तो ग्रिड बेस्ड का आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमको क्या करना है ग्रिड बेस्ड टेस्ट में। पैटर्न मैचिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रोज एंड कॉलम्स के क्रॉस पैटर्न कैसे मैच करना है, उसमें भी प्रैक्टिस करिए। आपको बहुत टाइम वेस्ट भी हो सकता है, तो उसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा एवरीवन। हाँ, पैटर्न मैचिंग कि इस रो में कौन सा पर्टिकुलर पैटर्न हम आ सकता है, कौन सा शेप आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट इज बिहेवियरल राउंड, तो उसका आई डोंट थिंक सो कि प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिकॉज आपको सिंपली क्या होता है, आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वन इज ऑन द लेफ्ट एंड अनदर ऑन द राइट, तो स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री आपको इसमें पॉइंट्स देने पड़े बस। So this was the behavioral round, and this is not an elimination round, as we all know. Yeah. So first of all, thank you so much हर्षदा, आपने अपना टाइम निकाल कर अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, प्लस ये भी शेयर किया कि कैसे आने वाले स्टूडेंट्स फ्रेशर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो that means a lot. So thank you so much हर्षदा. Thank you Anshul, because what I found that now you are just showing and we are watching so many videos from this platform, and that is help for many of the students, great help for many of the students, I think so. आप जितने इजी लैंग्वेज में समझा रहे हो, लाइक मैं एमटेक स्टूडेंट रही लेकिन मैंने आपके वीडियो से पढ़ा, तो दैट इज प्लस पॉइंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम जस्ट बीटेक 2021 ग्रेजुएट एंड लाइक आई नो आप नहीं और भी सीनियर्स है जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूँ, हर्षदा ने जितनी भी रिसोर्सेज के बारे में बताया उन सभी रिसोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो उसका भी स्लॉट आप डिस्क्रिप्शन में बुक कर सकते हो। स्लॉट नहीं मिलता तो या So one more point I'll add, each and everyone, those who are watching this video, please attend his mock interviews. Link will be found in the description. So आप लोग जरूर इंटरव्यू अटेंड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये रहता है कि how you are going to face an interviewer. तो definitely when you are going to face mock interviews आपको बहुत help भी मिलेगा. Exactly. So thank you so much हर्षदा. तो अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं. So once again thank you so much. Thank you so much, Anshul, and this Tech and Tech, this Target platform. Hope that you continue with this journey ahead. Yeah, with sure. Many subscribers. Thank you. Yeah. Okay. Bye. Bye, Arshada.